یہ ہفتے کی ایک خوشگوار صبح تھی۔ میں نے اپنی وین تقریباً 10:30 بجے 2419 میلر پیلس کے سامنے، یہ سینٹ البانس کا ایک فیشنیبل اور پوش علاقہ تھا۔ کالونیل طرز کے بنے اس 2 منزلہ مکان کے چھت ہی نرالی تھی۔ بہترین تراش و خراش والی باڑ کے پار ایک وسیع و عریض لان تھا، پھر اس سے آگے وہ شاندار مکان اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ استادہ تھا، بہت قیمتی اور بہت ہی امیرانہ۔ جیمز گریگ یقیناً بہت امیر شخص تھا۔ اپنے مکان چوروں سے حفاظت کے لیے کسی بھی قسم کا حفاظتی برقی نظام اس کی قوت تحریر میں تھا۔ ایک سے ایک بڑھ کر مہنگا الارم خریدنے کے علاوہ چوکیدار بھی رکھ سکتا تھا، لیکن ہر کسی کی نفسیات اپنی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ بھی دوسرے انسان کا اعتبار نہیں کرتے، اور شاید مسٹر گریگ کا شمار بھی انہی افراد میں ہوتا۔ بہرحال وہ جیسے مزاج کا بھی تھا، مجھے جلدی پتہ چل گیا کہ اس نے اخبار میں شائع ہونے والے اشتہار کے حوالے سے مجھ سے رابطہ کیوں کیا تھا۔ میں وین سے نکل کر اس کے عقبی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ جیسے ہی میں نے عقبی دروازہ کھولا، سیمی بوائے نے ہلکی آواز میں بونگ کر میرا استقبال کیا اور اپنا سر جھکا کر میرے آگے کر دیا تاکہ میں اسے سہلا سکوں۔ سیمی بوائے 90 پاؤنڈ کا ایک جرمن شیفرڈ تھا۔ میں نے اس کا سر سہلایا تو وہ خوش ہو گیا۔ اس کتے نے کئی سال تک خصوصی تربیت حاصل کی تھی، اور میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ میں نے آج تک اتنا ذہین کوئی اور جانور نہیں دیکھا تھا۔ وہ چھلانگ لگا کر نیچے اترا تو میں نے وین کا دروازہ بند کر دیا۔ ہم چلتے ہوئے مسٹر گریگ کے پرشکوہ مکان کے سامنے پہنچ گئے۔ سیمی بوائے سر جھکائے اور دم ہلاتا ہوا میرے ایک جانب چلتا رہا۔ جیسے ہی پورچ میں پہنچ کر رکا تو نہایت تمیز کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ میں اس کی اس ادا پر مسکرا دیا اور اطلاع کی گھنٹی بجا دی۔ مجھے لگ بھگ کوئی آدھا منٹ ہی انتظار کرنا پڑا اور دروازہ کھل گیا۔ گولف سویٹر پہنے سرخ بالوں والے ایک درمیانی عمر کے مرد نے میرا استقبال کیا۔ وہ اپنے حلیے سے نوکر بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مسٹر گریگ کو ملازم رکھنے کا شوق بھی نہیں تھا۔ بعد میں گھر کے اندر دیکھا تو یہ بات پتہ چلی کہ وہ اتنا بڑا بھی نہیں کہ سنبھالنے کے لیے ملازموں کی فوج کی ضرورت پڑ جائے۔ جی فرمائیں، سرخ بالوں والے نے سوالیہ انداز میں کہا، اور پھر اچانک ہی اس کی نظر میرے پہلو میں بیٹھے سیمی بوائے پر پڑی۔ اوہ، تو آپ ہوشیار خبردار کی طرف سے آئے ہیں؟ ہاں جی، میرا نام پال فرگوسن ہے، میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ آپ یقیناً مسٹر جیمز گریگ ہوں گے۔ بالکل صحیح پہچانا، پلیز اندر آ جائے، اس نے اندر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بڑا ہی شاندار جانور لے کر آئے ہیں آپ، سیمی بوائے واقعی لاجواب ہے، میں نے ایسے خوش ہوتے ہوئے کہا جیسے گریگ نے میری تعریف کی ہو۔ سیمی بوائے جیسے 90 پاؤنڈ وزنی جرمن شیفرڈ کو دیکھ کر ہر شخص کا مختلف رد عمل ہوتا۔ کچھ لوگ ڈٹ جاتے، کچھ تعریف کرتے اور کچھ ناگواری کا اظہار بھی کر دیتے تھے۔ وہ اتنی آسانی سے مرغوب ہونے والی شخصیت نہیں تھا، اور مجھے اس سے معاملات طے کرنے میں کوئی مشکل بھی پیش آ سکتی تھی۔ میں نے اخبار میں جو اشتہار دیا تھا اس میں کچھ اس طرح کے الفاظ تھے: ہوشیار خبردار، اعلیٰ تربیت یافتہ حفاظتی کتے، آپ کے گھر کی حفاظت کے لیے 100% اطمینان و سکون کی گارنٹی کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ دیا ہوا نمبر جو کہ میرے ایک موبائل فون کا تھا۔ مسٹر گریگ سے ملاقات کا وقت اس کے ذریعے ہی طے ہوا تھا۔ یہ بات میں نے اکثر رابطہ کرنے والوں محسوس کی تھی کہ وہ تربیت یافتہ کتوں کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتے۔ عام طور پر اس معاملے میں ان کی معلومات ناقص ہوتی ہیں۔ انہیں ایسا لگتا تھا کہ تربیت یافتہ کا مطلب ہوگا کہ کوئی بہت بڑا اور خوفناک شکل کا کتا انہیں فراہم کر دیا جائے گا جو چوروں کی آمد پر بونک بونک کر پورے محلے کو جگا دے گا، یا پھر اپنے ہونہار دانتوں کی مدد سے چور کی تکہ بوٹی کر ڈالے گا۔ کچھ ایسا بھی سمجھتے تھے کہ گارڈ ڈاگ ہمہ وقت چوکس ہو کر پورے گھر کا گشت کرنے والا کوئی کتا ہے جو میلوں دور سے صرف سونگ کر بتا سکتا ہے کہ کون گھر کے نقب لگانے کا ارادہ رکھتا ہے، جبکہ ایسے لوگوں سے بھی پالا پڑ چکا تھا جو حفاظتی کتے کو کسی بالی شخص کے برابر سمجھ کر بچوں کا خیال رکھنے کی ذمہ داری سونپنے پر بھی آمادہ دکھائی دیتے تھے۔ ایک شخص تو ایسا بھی تھا جو سمجھتا تھا کہ حفاظتی کتے کوئی خوفناک افریت ہوتے ہیں جو مالک کے حکم پر کسی کو بھی کاٹ کھانے کے لیے دوڑ سکتے ہیں۔ گریگ، میں اور سیمی بوائے ایک خوبصورت سی نشست گاہ میں داخل ہوئے جو کہ بہترین قالینوں اور قیمتی فرنیچر سے سجا ہوا تھا۔ اس نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد چاندی کے کپوں میں کافی لے کر آ گیا۔ اس کی ہر ایک چیز سے عمارت جھلکتی تھی۔ ملازم رکھنا میری بیگم کو پسند نہیں ہے اور وہ خود بھی شاپنگ کے لیے گئی ہے، لیکن اس معاملے میں میرا فیصلہ ہی آخری ہوگا۔ کافی خود بنانے کی وجہ اس نے خود بیان کر دی، اور ساتھ میں یہ بھی بات واضح کر دی کہ میری کمپنی سے معاملات فائنل کرنے کے سارے اختیارات اس کے پاس ہیں۔ اس میں کیا خصوصیات ہیں؟ گریگ نے بغور سیمی بوائے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ تو آپ پر منحصر ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ ایسے کہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ سیمی بوائے کو گھر کے اندر رکھنا چاہتے ہیں یا پھر گھر کے باہر؟ میں نے وضاحت سے قبل تفصیل جاننا چاہیے۔ گھر کے اندر؟ صحیح، میرے پاس نوادرات کا بہترین ذخیرہ موجود ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کیا۔ اچھا، میں نے اندر موجود برتنوں کی شکل میں نوادرات کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ چائنا؟ میں نے اندر موجود برتنوں کی شکل میں نوادرات کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ کچھ خاص ہے، اس نے میری تصحیح کی۔ یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے جس سے برتن بنائے جاتے ہیں۔ 15ویں صدی میں متعارف ہونے والی یہ ٹیکنیک اس زمانے میں قیمتی نوادرات میں شمار کیے جاتے ہیں۔ کافی خوبصورت ہے، میں نے ایسی تعریف کی کہ میرے لہجے سے ہی واضح ہو جاتا تھا کہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ہاں، بہت قیمتی بھی ہے، گریگ نے میرے لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے نامہ ظروف کی تعریف جاری رکھتے ہوئے کہا۔
मुझे हमेशा बाहर जाते हुए यही अच्छा लगा रहता है कि जब मैं वापस आऊँगा तो कोई इनका सफाया करके जा चुका होगा। ओह, अगर ये वाकई इतने कीमती हैं तो आपको अभी तक कोई अलार्म सिस्टम नस्ब कर लेना चाहिए। मैंने तफक्कुर आमेज़ लहजे में कहा, वो तो मैं कब का इंस्टॉल करवा चुका हूँ, ग्रेग ने बेपरवाही से मुझे बताया, लेकिन मुझे इस पर यकीन नहीं। टेक्नोलॉजी को धोखा देना कौन सा मुश्किल काम है, सिस्टम को तो कोई भी हैक कर सकता है। आप तो जानते होंगे कि आजकल के तो नकबजन बहुत तेज हो चुके हैं। ऐसे ऐसे हालात उनके पास होते हैं कि अलार्म सिस्टम को बाईपास कर देते हैं और अपना काम खामोशी से सारे अंजाम देकर ये जाओ वो जा। मालिक इत्मीनान में रहते हुए अपने करोड़ों का नुकसान करवा बैठता है। ये तो बात आपने बिल्कुल सही की है, मैंने इसकी तायद की। मेरे मकान के दोनों जानब वाले पड़ोसी काफ़ी दूर हैं। अगर अलार्म बाज भी उठे तो उन तक आवाज़ शायद पहुंच भी ना पाए। अलार्म सिस्टम की तो आवाज़ भी किसी खौफनाक चिंगार से कम नहीं होती। मुझे उम्मीद है कि सिर्फ शोर को सुनकर ही नकबजन को फरार हो जाना चाहिए। मैंने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। अलार्म नस्ब करने वाली कंपनी ने मुझे बताया है, लेकिन बात है सीधी सी। ग्रेग ने शाने उचकाते हुए कहा, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर में एक कुत्ता मौजूद होगा तो चोरों को हिम्मत ही नहीं बढ़ेगी कि यहाँ से चोरी करने का सोचें। वैसे भी एक तरबियत याफ्ता कुत्ते का अलार्म सिस्टम का मुकाबला ही नहीं कर सकता। बिल्कुल, मैंने एक बार फिर ग्रेग की तायद की। आप और दीगर घरेलू अफराद के अलावा ये कुत्ता किसी भी को घर के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं देगा। हाँ, अगर आपके साथ कोई शख्स दाखिल हो तो ये नहीं रोकेगा। अगर मेरी अदम मौजूदगी में कोई चोर घर में दाखिल हो जाए तो ये क्या करेगा? ग्रेग ने सैमी बॉय की जानिब इशारा करते हुए सवाल किया, जो एक जानिब बैठा दुम हिलाने में मसरूफ था। इसे रोकेगा, मैंने जवाब दिया। कैसे? ग्रेग ने पूछा। पहले तो भौंक कर खबरदार करेगा, अगर वो फिर भी बाज ना आया तो इसे काट लेगा। मैंने रसान से कहा, अगर वो पहले ही इसे ठिकाने लगा दे तो? ग्रेग ने पूछा तो मेरी हंसी निकल गई। सैमी बॉय का बंदोबस्त किए बगैर चोर एक कदम भी इस घर में नहीं रख पाएगा। मैंने कहा, 90 पाउंड के जर्मन शेफर्ड को ठिकाने लगाना कोई आसान काम नहीं, खासतौर पर उस वक्त जब अंधेरा भी हो। आपका बाजू भी सैमी बॉय ने अपने जबड़े में दबोच रखा हो। ग्रेग मेरी बात सुनकर सोच में पड़ गया। इसकी निगाहें सैमी बॉय पर जमी हुई थी, जैसे नजरों ही नजरों में इसकी सलाहियतों और मेरे बयानियों को नाप तोल कर कोई नतीजा हासिल करने की कोशिश कर रहा हो। आपको इसका भरपूर ख्याल भी रखना होगा। मैंने ग्रेग को गहरी सोच में देखा तो अपने कुत्ते की मजीद खूबियां बयान करना शुरू कर दी। न सिर्फ इसका सेहत का ख्याल रखना होगा, बल्कि इसे भरपूर मोहब्बत भी देनी होगी। अगर कुत्ते को यकीन हो जाए कि आप इससे मोहब्बत करते हैं तो आखिरी दम तक आपका साथ निभाता रहेगा। कुत्ते की वफादारी तो वैसे भी ज़रुल मिसल की हैसियत रखती है। आप इसे जो भी हिदायत देना चाहेंगे ये गौर से सुनेगा, इस पर अमल करेगा। जर्मन शेफर्ड वैसे बहुत ज़हीन होते हैं और मैं कोई बढ़ा चढ़ा नहीं रहा, लेकिन आप भी किसी डाक एजेंसी से रब्ता कर लें, आपको सैमी बॉय जैसा तरबियत याफ्ता, शानदार और समझदार कुत्ता कहीं से ना मिलेगा। पता है, ग्रेग ने कहा तो मेरा दिल बिल्लियों चलने लगा। मैं इसके तासुरात देखकर ही बता सकता था कि वो मेरी तकरीर के नतीजे में नीम कायल तो हो चुका है। बस थोड़ी सी मेहनत और की जाए तो वह रजामंदी भी ज़ाहिर कर देगा। मिस्टर ग्रेग, मैं ये वादे कर दूं कि सैमी बॉय एक अनमोल साथी है। मैंने मजीद वजाहत की, इसकी अहमियत और अफादियत का अंदाज़ा आपको तब तक नहीं हो सकता जब तक आप इसके साथ वक्त गुजारना लें। मुझे भी ये यकीन होना चाहिए कि मैं इसे ऐसे ही इंसान के हवाले कर रहा हूँ जिसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। ग्रेग ने मेरी तरफ मुतवज्जह हुए बगैर हमकारी भरी। इसकी नज़रें अभी तक सैमी बॉय पर जमी हुई थी। क्यों ना आजमाइशी तौर पर मैं सैमी बॉय को आपके पास एक हफ्ते के लिए छोड़ दूं और इस दौरान रकम भी चार्ज नहीं करूंगा। मैंने तजवीज़ पेश की। इस अरसे में आप और सैमी बॉय एक दूसरे से मानूस हो जाएंगे, फिर आपको इसकी अफादियत से भी वाकफियत हो जाएगी। फिर अगर आप इसकी कारकर्दगी से मुतमईन होंगे तो मुझे $5000 का चेक दे दीजिएगा, वरना सैमी बॉय को अपने साथ वापस ले जाऊंगा। $5000 बहुत बड़ी रकम है। ग्रेग के माथे पर एक तेवरी नमदार हुई। बेशक, मैंने फौरन कहा, अगर आप पालतू जानवरों की दुकान से कोई नस्ली जर्मन शेफर्ड लाएंगे तो वो आपको शायद इससे आधी रकम पर मिल जाएगा, लेकिन सैमी बॉय कोई आम कुत्ता नहीं, ये मुकम्मल तरबियत याफ्ता है। आप एक हफ्ते में इसे अपने पास रखें, फिर आप खुद ही कायल हो जाएंगे कि मैं आपसे मांग रहा हूँ। सैमी बॉय की कीमत इससे कहीं ज़्यादा है। मैंने सैमी बॉय को अपने पास बुलाया और इसका तारुफ ग्रेग से बतौर नए मालिक के कराया। मेरे ग्राहक इस तर्ज के तारुफ को अमूमन पसंद करते थे और ग्रेग को भी ये चीज़ पसंद आई। सैमी के गंगेरे बालों में हाथ फेरते हुए ग्रेग के चेहरे पर छाए तासुरात ये बताने के लिए काफ़ी थे कि मैं कम अज़ कम ट्रायल पीरियड के लिए सराधिकार ही चुका हूँ। आगे आने वाले वक्त में सैमी की कारकर्दगी इतनी आला बुलंदी थी कि मुझे तारीफों के बुल बांधने की जरूरत ही ना पड़ती। अगले आधे घंटे तक मेरी ग्रेग के इस हवाले से गुफ्तगू होती रही कि सैमी बॉय का ख्याल कैसे रखना है। इसकी खुराक निगहदाश्त के साथ साथ मैंने कोई दर्जन भर ऐसी इस्लाहात भी बयान की जिसको सैमी बॉय बहुत समझकर और उस पर अमल भी कर सकता था और ग्रेग को इसे पालने में मददगार साबित हो सकता। मेरे ख्याल में इतनी हिदायत काफ़ी है। मैंने इस तफसीली गुफ्तगू को ख़त्म करने के इरादे से कहा, आपको सैमी बॉय समझ आएगा। फिर अगर कोई गैर मामूली सूरत हाल पेश आएगी तो आप मुझसे मेरे मोबाइल फ़ोन पर रब्ता भी कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत भी शायद पेश ना आए, क्योंकि हफ्ता मुकम्मल होने से कबल मैं एक दो चक्कर लगाकर देख लूँगा ताकि सैमी बॉय आपसे मजीद मानूस किया जा सके। ये तो बेहतरीन काम हो जाएगा मिस्टर फर्ग्यूसन, ग्रेग ने खुश होते हुए कहा। मैंने इस खुश मिजाजी और मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया और भरपूर इसरार के बावजूद एक कप मजीद काफ़ी पिए बगैर वहाँ से इजाज़त लेकर दरवाजे तक आया। जहाजी साइज के चौबी दरवाजे के एक जानब अलार्म सिस्टम नस्ब था। ये एक आम सा अलार्म सिस्टम था जिस लीवर की मदद से ऑन ऑफ किया जा सकता था। घर के बाहर होने की सूरत में चाबी का इस्तेमाल करके इसे बंद या चलाया भी जा सकता था। ग्रेग ने बिल्कुल ठीक कहा था कि ऐसे अलार्म सिस्टम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हिफाजती कुत्तों की बात ही लगती, वो तरबियत याफ्ता होते हैं और मालिक के मफाद की खातिर किसी भी हद तक जा सकते हैं। गुड बाय। ग्रेग और सैमी बॉय को हाथ हिलाकर मैंने अलविदा कहा और अपनी वैन चलाते हुए सेंट अल्बांस के कस्बे में पहुंच गया। मेरा सारा दिन अपने कुछ मामलात निपटाने में गुजर गया और रात मैंने एक होटल में क़याम की।
अगली शाम 7:40 के लगभग मैं गोल्ड मेंटेरन नामी एक चाइनीज रेस्टोरेंट में डिनर के बाद ग्रेग को फोन करने लगा। सैमी भाई आपके साथ ठीक तो है ना? मेरे जाने के बाद इसने आपको तंग तो नहीं किया? मैंने फिक्रमंदी से पूछा। अरे नहीं, ये तो बहुत अच्छा डॉगी है, ग्रेग ने तो सिफी लहजे में कहा। मेरा इसके साथ कैसे वक्त गुजरता है पता ही नहीं चलता, और इसने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया। शुक्र है आपने इसे अच्छे से संभाल लिया। ये कहते हुए मैं गुलगुल हो गया। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चक्कर लगा लूं इसे मिलने के लिए। वैसे भी मैं कुत्तों की देखभाल पर एक जबरदस्त किताब लेकर आ रहा हूँ जो आपको बतौर तोहफा देना चाहता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि सैमी भाई की निगहदाश्त के मामले में आपको इससे काफी मदद मिलेगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, ग्रेग ने कहा। तुम्हारा जब जी चाहे फर्ग्यूसन, मुझे एक कॉल करके आ जाना, लेकिन आज शाम मैं मसरूफ हूँ तो इसके लिए मैं माजरत हूँ। मुझे और मेरी बेगम को दावत के सिलसिले में चंद दोस्तों के यहाँ जाना है। मैंने ग्रेग की इस खुली पेशकश का शुक्रिया अदा किया और चंद रस्मी जुमलों के बाद कॉल मुनक़ता कर दी। खाना मैं खत्म कर चुका था, इसलिए सब चाय का दौर चला और गहरी सोच में डूब गया। मुझे चाय के साथ एक फार्चून कॉफी भी मिली। इसको तोड़ने पर अंदर से किस्मत का हाल पता चलता था। मैंने भी चाय खत्म करके अपनी कॉफी को तोड़ा। वक्त से पहले तैयारी कर लो तो इसका फल भी वक्त से पहले मिल जाता है। अपनी कॉफी के बीच में मिलने वाली पर्ची पर लिखा पैगाम पढ़कर मैं मुस्कुरा दिया। मैं 10:30 बजे तक सेंट अल्बांस की सड़कों पर अपनी वैन दौड़ाते हुए आवारागर्दी में मशगूल रहा। इसके बाद मैं रात जरा गहरी होने पर मज़ाफाती इलाके मेलरोज पैलेस पहुंच गया। जब मैंने देखा कि ग्रेग के मकान में अंधेरा छाया हुआ है और जिंदगी के असरात नजर नहीं आ रहे, तो मैंने वैन को इसके घर की राहदारी पर ले गया और ऐसे पार्क कर दिया कि बाढ़ की आड़ में इसे देखना मुमकिन ना रहे। दबे कदमों से चलता हुआ मैं मरकजी दरवाजे तक पहुंचा और 2 मरतबा बेल बजाई। अंदर से किसी इंसान की आवाज नहीं आई। चंद ही लम्हों बाद मैंने महसूस कर लिया कि पंजों के बल चलते कदम दरवाजे के करीब पहुंच चुके हैं। हेलो सैमी भाई, मैंने दरवाजे के करीब होते हुए सरगोशी की। अंदर से हल्की हल्की सी आवाज में भौंक कर मुझे सैमी भाई ने अपनी मौजूदगी का यकीन दिलाया। मैंने अपनी जेब से एक अदद डल विस्ल निकाली और इसे 2 बार बजाया। ये विस्ल इंसानी कानों के लिए नहीं होती, सिर्फ कुत्ते ही इसमें निकलने वाली आवाज को सुन सकते हैं। सैमी भाई को जिस बात की ट्रेनिंग दी गई थी, डॉग विस्ल की आवाज सुनकर वो फौरन इस काम पर लग जाता था। ये काम इसके लिए कोई नया नहीं था। पूरे मुल्क में वो मुख्तलिफ कस्बों और शहरों में ये काम कई मरतबा बखूबी से अंजाम दे चुका था। सेंट अल्बांस के आने से पहले करीबन 8 रियासतें सैमी भाई की बेहतरीन कारकर्दगी से महसूस हो चुकी थी। मैं अपने चश्मे तस्वर में देख सकता था कि सैमी भाई अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हुआ और अगली टांगें दरवाजे के साथ वाली दीवार पर टिका दी। फिर इसने अपने मजबूत दांतों की मदद से अलार्म सिस्टम का लीवर खींचकर इसे ऑफ कर दिया। जब मैंने इसके कदमों की वापसी की चाप सुनी और इसने हल्की आवाज में एक बार फिर से भौंका, तो मुझे यकीन हो गया कि वो अपने हिस्से का काम कर चुका है। वो मारा। मैंने दिल ही दिल में नारा लगाया और करीबी खिड़की की जानिब बढ़ गया। शीशा काटने का सामान मेरे पास पहले ही मौजूद था, चुनांचे इसे मैं फौरन ही इस्तेमाल में लाया और इतना बड़ा गोल सुराख कर दिया जिससे मेरा बाजू बआसानी अंदर दाखिल हो जाए। इसके बाद मैंने हाथ अंदर डालकर खिड़की की चटखनी खोल ली और छलांग मारकर अंदर दाखिल हो गया। सैमी भाई एक कोने में फर्श पर बैठा मेरी जानिब उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। उसकी जगह अगर उस जैसा कोई और कुत्ता भी होता तो खिड़की में हाथ दाखिल करने पर ही मेरा बाजू नोच चुका होता। मैं आगे झुककर उसके सर पर थपकी देने लगा। शाबाश मेरे शेर, मैंने सैमी भाई से कहा। जेवरात और नवादात के साथ मैंने तकरीबन सारा कीमती सामान समेट कर अपनी वैन में मुंतकिल किया और अपना काम मैंने तेजी से मुकम्मल किया, क्योंकि मिस्टर ग्रेग और इसकी बीवी किसी भी वक्त दावत से वापस हाजिर हो सकते थे। चलो सैमी भाई। मकान पर एक अलविदाई निगाह डालते हुए मैंने कुत्ते से कहा, जो मेरा इशारा फौरन समझकर गाड़ी में बैठ चुका था। वाकई मिस्टर ग्रेग, एक तरबियत याफ्ता कुत्ते का कोई अलार्म सिस्टम मुकाबला ही नहीं कर सकता। मैंने कस्बे से बाहर निकलकर मरकजी शाहराह पर वैन चलाते हुए सोचा, जहां मैंने अपने मोबाइल से वो सिम भी निकाल फेंकी थी जिस पर ग्रेग ने राब्ता किया था। होशियार खबरदार नामी कंपनी ने अपने एक कस्टमर को ऐसा सबक सिखाया था जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा।